So we are selling into 98 countries, and I started my export journey in 1997. उस टाइम पे गवर्नमेंट कांग्रेस की Yeah, कांग्रेस गवर्नमेंट थी. LinkedIn is a very very powerful tool. फर्स्ट ऑफ ऑल कोई बंदा बोले मुझे एक कंटेनर माल चाहिए, तो आपके पास पता होना चाहिए कि एक कंटेनर में कितना माल जाएगा. आप बताएंगे आप कितना माल जाता है. Hi friends, welcome to MSME Business Growth Series. I am Kevil Kishan and I'm starting a new series where I'm inviting best experts in the industry to help you grow your MSME business as a business owner. And today we have Sandeep Kaushik with us, who is going to guide us on how to start and grow an export business. So welcome Sandeep. Thank you, Keval. Good to be here. Tell us and our viewers on what do you do? Well, I'm a serial entrepreneur and I have multiple businesses, multiple verticals. I started with children books publishing, and I have a brand called Macau Books. So we are selling into 98 countries, and we also translate our books into 27 languages. And my second line of business is IT outsourcing company, which is called Tech Allies, where we essentially do outsourcing services. But yeah, something which is very close to MSMEs and to my heart is something where we're helping MSMEs start, build, and grow their export business. So we are conducting trainings and we are hand-holding companies to grow exponentially into multiple countries. Awesome. संदीप मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि अगर आप मुझे अभी बताओ कितने कंट्रीज में आपके क्लाइंट्स हैं? मेरे अपने क्लाइंट्स तो 98 कंट्रीज में हैं. Guys, 98 countries. So this guy has clients not only from India but 98 other countries. So make sure you watch this interview till the end because you're going to get some golden nuggets on how to actually get the international clients and how to grow your business. So मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्लाइंट्स कैसे एक्वायर किए जाए? अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है फरीदाबाद में, दिल्ली में, बॉम्बे में, उनका पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स उन्हें कैसे मिले? वेल पूरे प्रोसेस में तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. सबसे पहले ऑब्वियसली आपको इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए एक इंटरनेशनल ब्रांड का लुक एंड फील बनाना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ योर डिजिटल एसेट्स. सेकेंडली देयर आर मल्टीपल वेज टू फाइंड बायर्स. तो पहले यू काइंड ऑफ फाइनलाइज द टारगेट सेगमेंट, किन कैसे लोगों के साथ आप काम करना चाहते हैं. And once you finalize target segment, there are various tools with which you can find the buyers, like all those people in various countries. And then, of course, you have to connect with them through various methods, which essentially is, email marketing, through LinkedIn, through WhatsApp marketing, of course, in certain countries, not all, and finally cold calling as well. So, I mean, there are multiple ways to connect with them. Right. So would like to ask you, when did you start your book publishing business? और आपको अपना पहला क्लाइंट कैसे मिला और कौन सी कंट्री से था वो? Okay, I think I started my export journey in 1997. 1997. So got it. उस टाइम पे गवर्नमेंट कांग्रेस की Yeah, कांग्रेस गवर्नमेंट थी. But that was a joint venture with Bharti Telesoft. अच्छा. And Mr. Mittal had a friend in US who was his batchmate, and they wanted outsourcing services on designing. एंड उस टाइम पे मेरी कंपनी डिज़ाइनिंग करते थे हम लोग बुक्स की. सो वी हैड अ जॉइंट वेंचर एंड वी वर्क विद दिस कंपनी कॉल्ड एक्सलेब्रिस फॉर 2 years. And in 1999, I did my first fair, my first Frankfurt Book Fair. And that is where I met a lot of publishers. I pitched our services and I still remember the name of the company. It was Ivan Moore Publication from California. They were our first client and they gave us a good project to start with. तो वो 1997 में आपको पहले क्लाइंट मिले और अब तक अगर मैं पूछूं 98 कंट्रीज में क्लाइंट्स है, टोटल हाउ मेनी क्लाइंट्स हैव यू सर्व टिल नाउ? I think I don't really have the right numbers, but maybe at least 400 plus clients, I would say. So अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या टॉप 5 कंट्रीज हैं जिसमें अगर कोई आज बिजनेस शुरू करना चाहे उसको टारगेट करना चाहिए, सो अ पर्सन शुड थिंक लाइक दिस और नॉट कि इफ आई वांट टू स्टार्ट एन एक्सपोर्ट बिजनेस, शुड दे फोकस ऑन अ स्पेसिफिक कंट्री or should they just do the general marketing and see on which particular client is sending the inquiry? There is a very specific system for this. देखिए almost 220 countries हैं. आप मार्केटिंग हर कंट्री में नहीं कर सकते. So as you said, you have to focus. Top 5, top 3, top 10 countries. Most of the people जो अगर बिना नॉलेज के काम करते हैं तो वो
हर जगह मार्केटिंग शुरू कर देते हैं, और ख़ासकर लोग कहते हैं कि यूएस, यूके, कनाडा, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लगता है कि बहुत इंपोर्ट होती है, बट टू गेट अ एंट्री इन दोज कंट्रीज इज़ वेरी डिफिकल्ट। आई मीन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो कंपटीशन भी उससे ज़्यादा है। तो एग्जैक्टली यही पॉइंट मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ. यू सेड यू गॉट द फर्स्ट क्लाइंट इन 1987. आफ्टर दैट राइट नाउ यू आर सर्विंग 400 clients. So can you just tell me briefly about that journey? Maybe you might have a small team. अभी आपकी कितनी बड़ी टीम है? And how was that journey from getting the first client to 400 clients in 98 countries? Because our viewers, we want to know that particular journey. What were ups? What were downs? So if you can share few instances. Sure, absolutely. I think when I started, I had no guidance in terms of how to grow your exports. I mean, there were certain courses which I did which told me about जो documentation होती है या जो legal requirements होती हैं, that government runs something. But I haven't had any practical training or knowledge about this. So I had actually traveled extensively. I have invested a lot in terms of exhibiting into various countries, traveling and meeting people. You know, once you meet people in the exhibition, then planning your trips and going to those countries and meeting them. So gradually, it kind of started working out. I started with the US market, but then in fact, right now, the biggest market for my publishing company is the Middle East, Middle East. where I think we have around 6,700 So titles. Dubai and Qatar. Not Dubai, Qatar. So the publishing more or less is, in the Middle East market, more publishers are in Lebanon and Egypt, majorly, and of course there are other people in other countries as well. UAE is a bigger consumer of books, but then in terms of publishing fraternity, I think we have a lot of people in Lebanon and earlier Syria also, but they all moved up. So that Africa, of course, is a good market for us. We have some good clients all across Africa, and the biggest market as of now is Latin America. Awesome. So basically, बुक्स स्पेनिश में बिकती हैं वहाँ पे, और मेक्सिको एक मेजर हब है, और वहाँ से करीबन 12 से 13 कंट्रीज़ हैं. वेनेजुएला है, पेरू है, पनामा है, एक्वाडोर एंड ऑल दोज प्लेसेस. वहाँ से बुक्स आती हैं और स्पेनिश में ट्रांसलेट होती हैं. ठीक है, तो मुझे आप एक चीज़ और बताइए. फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी इज मैन्युफैक्चरिंग दिस ग्लास, ओके, एंड ही इज सेलिंग इट इन इंडिया टू फ्यू कंपनीज, what should be few initial steps for him to get the clients, international clients from LinkedIn? Because many of my students, they are using LinkedIn, but I would like you to throw some light कि LinkedIn से international clients की कैसे inquiries आप generate कर सकते हैं. LinkedIn is a very, very powerful tool, and of course with time it has become more powerful, and especially like the last 2 years have really changed a lot of things in terms of the platform. So I would say to begin with, they have to based on the product, you have a HSN code, which is a unique code for your product. So you find out the right HSN code because that's very important. अगर वो गलत हुआ तो सारी स्टडी आपकी खराब हो जाएगी. Okay, can you tell the viewer what is this HSN code and okay, so कोई भी चीज़ जो आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, उसका एक यूनिक HSN कोड होता है. इंडिया में वो 8 डिजिट का कोड है, और वर्ल्ड वाइड जो है फर्स्ट 6 डिजिट जो हैं वो कॉमन होते हैं, और हर कंट्री का कहीं 8 है, कहीं 10 है, बट पहले 6 डिजिट कॉमन होते हैं. तो ये आपको HSN कोड के लिए आप इंडियन ट्रेड पोर्टल जैसी साइट है, या बहुत सारी और गवर्नमेंट की साइट है, गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि आपके प्रोडक्ट का HSN कोड क्या है. नाउ वंस यू फाइंड द राइट HSN कोड, देन देयर आर टूल्स विच विल हेल्प यू शॉर्टलिस्ट कंट्रीज जहाँ पे आपका प्रोडक्ट मैक्सिमम इंपोर्ट होता है. तो उसके बेस पे और 3-4 फैक्टर्स होते हैं, उनके बेस पे आप अपनी कंट्रीज पहले शॉर्टलिस्ट करें. पहले शॉर्टलिस्ट करेंगे. जैसे आपने बोला था कि टॉप 5 कंट्रीज कर ली, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई मैन्युफैक्चरर उसने मिडिल ईस्ट में 1-2 कंट्रीज कर ली, हाँ, उसके प्रोडक्ट के बेस पे वो होगा. अच्छा, हो सकता है वो मिडिल ईस्ट में हो सकता है वो सारी अफ्रीका में हो. 1-2 एग्जांपल आप दोगे कि मतलब 1-2 एग्जांपल कि अच्छा ये प्रोडक्ट की मार्केट इस कंट्री में बेटर है. जैसे बुक पब्लिशिंग, यू सेड मिडिल ईस्ट इज अ गुड कंट्री टू मार्केट फॉर, बट लाइक कोई एक मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक पाइप्स बना रहा है, या फिर सो जस्ट गिव मी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ फ्यू प्रोडक्ट्स व्हिच इज इट यूरोप अ गुड कंट्रीज टू गो आउट फॉर, और यूएस और मिडिल ईस्ट. सो दैट विल बी ग्रेट फॉर द व्यूअर्स. जैसे मैंने बोला कि ऐसे सेट मार्केट नहीं है प्रोडक्ट्स की, हर प्रोडक्ट की मार्केट अलग है. तो जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके आपको बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू डू अ स्टडी, जिससे आपको पता लगेगा कि सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ कौन सी इंपोर्ट करती हैं और कहाँ पे हमारा करने का बेनिफिट है. बिकॉज इंडिया हैज़ ट्रेड एग्रीमेंट्स विद लॉट ऑफ कंट्रीज़, तो वहाँ पे हमें प्रेफरेंस मिलती है बिकॉज इंपोर्ट ड्यूटी कम है, इंपोर्ट ड्यूटी 0 है जैसे.
तो उस केसेस में आपको बहुत केयरफुली एक सिस्टम के तहत आपको अपनी कंट्री शॉर्टलिस्ट करनी पड़ेगी। एंड वंस यू शॉर्टलिस्ट दैट, देन आपका चांस ऑफ गेटिंग बिजनेस देयर इज मच मोर देन इन कंट्रीज जहाँ पे मे बी रिक्वायरमेंट नहीं है या ऑलरेडी सेचुरेटेड मार्केट्स हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो स्टार्टिंग में मैं यही कहूँगा कि ऐसी कंट्रीज़ को फोकस करना चाहिए जहाँ पे आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी अच्छी है और कंपैरेटिवली कंपटीशन कम है। मैं आपसे पूछूं, अगर आप 5 कंट्रीज कोई रेकमेंड करते हैं टू स्टार्ट विद, क्या होंगी? जनरल कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है। अगेन एज आई सेड कि वैसे तो इंटायरली डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है और वहाँ की बिज़नेस की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप देखें वर्ल्ड की बिगेस्ट मार्केट तो यूएस ही है, बट यूएस में एंट्री कर पाना बहुत आसान नहीं है। सो आई नॉर्मली जो भी हम कंसल्ट करते हैं, आई डोंट रिकमेंड माई क्लाइंट्स कि आप यूएस से स्टार्ट करो। अच्छा, ये नहीं है कि यूएस से कोई इंक्वायरी आई तो हम मना करेंगे। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे कि यूएस में एंटर करना डिफिकल्ट है, राइट? वाई? सो लाइक कोई अगर क्लाइंट है जो इंडियन वेंडर से काम करना चाहता है, सो व्हाट आर द फ्यू क्वालिटीज विच दैट कंपनी लुक आउट फॉर? बिकॉज कुछ ना कुछ तो एक फिल्टर होगा ना, बिकॉज ऑफ विच दे सेलेक्ट किया इस वेंडर के साथ काम करना है, इसके साथ नहीं। अदरवाइज यूएस मार्केट वुड आल्सो हैव बीन द सेम मार्केट विद अदर कंट्रीज, बट व्हाट इज द रीजन व्हाई यूएस मार्केट इज डिफिकल्ट टू क्रैक, एंड what are the 3-4 things which they look out for in Indian vendors? सो आई थिंक यूएस में ओवरऑल अगर आप यूएस को स्टडी करो तो उनकी फिलॉसफी है आइदर बिकम अ बिग कंपनी और जॉइन अ बिग ग्रुप। व्हाट आई मीन टू से इज कि वहाँ पे सब कुछ जो प्रोक्योरमेंट है वो उसका लेवल बहुत हाई है, नंबर्स बहुत हाई हैं, और जब मार्केट बड़ी होती है तो ऑब्वियसली उसी हिसाब से उनके जो बायर्स हैं उनकी चॉइस भी बहुत स्पेसिफिक है। दे हैव अ लॉट ऑफ लिबर्टी टू चूज द सेलर्स। तो कहीं ना कहीं उनकी जो रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ प्रोसीजर्स, इन टर्म्स ऑफ सर्टिफिकेशंस, इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड्स एट टाइम्स, वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लॉट ऑफ अदर कंट्रीज। सो बेसिक अगर कोई भी कंट्री में एक्सपोर्ट करना है, इज इट मिडल ईस्ट और यूएस और यूरोप, बेसिक क्या सर्टिफिकेशंस लगती है, क्या कंप्लाइंसेस चाहिए कंपनी को इंडिया में, सो दैट ही कैन और ही शी कैन स्टार्ट एक्सपोर्टिंग टू अदर कंट्रीज? और इसमें कोई गवर्नमेंट कुछ हेल्प करती है, लाइक कुछ रिबेट या कुछ टैक्स में कुछ बेनिफिट्स? तो सबसे पहले कि क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट, वो होती है एक आईईसी कोड होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जो हर एक्सपोर्टर को या इंपोर्टर को लेना ज़रूरी है, एंड दैट्स इजी टू गेट। नंबर 2 एक एडी कोड होता है जो बैंक से मिलता है, दैट यू नीड टू रजिस्टर एट द पोर्ट्स जहाँ से भी आप एक्सपोर्ट करते हो। उसके अलावा जो सर्टिफिकेशन होती है वो डिपेंड करता है आपका इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। तो जैसे फूड, फार्मा और कॉस्मेटिक्स, एनीथिंग विच इज़ कंज्यूम्ड बाय अ ह्यूमन बीइंग, उसमें हमेशा सर्टिफिकेशंस कंप्लायंसेस ज़्यादा हों। उसके अलावा जो प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम लोग कंज्यूम नहीं करते, वहाँ पे कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। सो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। और इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन इंडस्ट्रीज़ के लिए जो भी एक्सपोर्ट करते हैं, वी हैव क्रिएटेड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स। तो हर इंडस्ट्री के लिए एक ना एक प्रमोशन काउंसिल है, वो लोग पूरा गाइड करते हैं अगर आप उनको ज्वाइन करेंगे। अदरवाइज भी उनकी साइट्स पे जाके आप देख सकते हैं कि आपकी इंडस्ट्री के लिए व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स एंड सर्टिफिकेशन। इसके अलावा एक दो टूल्स हैं जिससे आप मान लीजिए इंडिया से किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, तो इंडिया से जो एक्सपोर्ट करते हैं वो तो आपको पता है क्या रिक्वायरमेंट है, बस उस कंट्री की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये पोर्टल्स आपको पूरी डिटेल देते हैं। ओके, कैन यू नेम फ्यू पोर्टल्स? इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक साइट है macmap.org, macmap.org। तो वहाँ पे जाके आप इंडिया से जिस भी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट द डिटेल्स अबाउट व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। एंड ऑल्सो आई ऑलवेज टेल पीपल, जो भी हम लोग ट्रेन करते हैं, कि जो आपका क्लाइंट है उससे ज़रूर मांगिए कि आपके कंट्री में या आपको अपने लिए क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप स्टार्टिंग में पूछ लेंगे तो बेटर रहेगा, बजाय इसके कि आपका मटेरियल रेडी है, एक्सपोर्ट होने वाला है, और उसने बोला नहीं मुझे तो ये सर्टिफिकेशन चाहिए। अच्छा संदीप, आपकी जैसे यू आर एक्सपोर्टिंग बुक्स, सो यू माइट बी एक्सपोर्टिंग बुक्स वर्थ crores of rupees every year, right? Doing business past 20+ years, right? कभी ऐसा हुआ है कि कुछ क्लाइंट्स को आपने बुक्स भेजी और फिर बाद में पेमेंट्स नहीं आपको रिसीव हुई, पेमेंट गॉट स्टक? एक्चुअली एक्सपोर्ट बिजनेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, अच्छा, पेमेंट? सेफ पेमेंट्स। बहुत सारे लोग, बहुत सारे यंगस्टर्स इंडिया में, हम लोग पीछे
जब से हम लोग ट्रेनिंग कंसल्टिंग कर रहे हैं, वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई फाउंड अ लॉट ऑफ पीपल बीइंग ड्यूप्ड। अच्छा। और उसका कारण ये है कि जो प्रोसेस होता है किसी भी कंपनी को वेट करने का, वो बहुत सारे लोग नहीं करते। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली एक जेंटलमैन थे महाराष्ट्र से, वेरी यंग गाय, अपनी जॉब छोड़ के एक्साइटमेंट में बोला कि एक्सपोर्ट स्टार्ट करना है। ही मेट अ फ्रेंड ऑफ हिज, फ्रेंड के थ्रू किसी को मिला, दे विजिटेड हिज विलेज और उनसे रेड चिलीज़ का उन्होंने ऑर्डर फाइनल किया। अच्छी चिलीज़ होंगी उधर उस एरिया में। सो दे हैव फाइनलाइज समथिंग लाइक $100,000 का ऑर्डर था वो। 100,000 करीब करीब 70-80 लाख रुपए। 82 लाख रुपए हो गए 82 आज की लाख डेट रुपए में। का हाँ, और किस कंट्री का था कुछ? दुबई का, दुबई का। इंडियन बंदा था। तो बहुत खुश हो गया। उसने बोला मैं 25% एडवांस दे दूंगा तेरे को और बाकी जो है तेरे को पेमेंट जैसे ही माल पहुंचेगा दे दूंगा। तो इसने कुछ नहीं पता किया बंदा कौन है, कहाँ से आया, किस कंपनी से आया, कंपनी की क्रेडिबिलिटी क्या है, कुछ नहीं। ही गॉट वेरी एक्साइटेड और उस बंदे ने भी स्मार्टनेस किया, 1-2 दिन में पेमेंट डाल दिया $25,000 का। सो ही डिड एवरीथिंग राइट, पैकिंग करा, सब कुछ ख्याल रखा, कंटेनर शिप कर दिए और ओपन डॉक्यूमेंट्स, मतलब कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट क्लाइंट को भेज दिए एंड क्लाइंट ने अपना शिपमेंट ले लिया। उसके बाद सो व्हाट आई टेल टू एवरी एक्सपोर्टर, स्पेशली जो लोग नया स्टार्ट कर रहे हैं, कि आपका एक 2 टियर प्रोसेस है। पहला टियर ये है कि जो कंपनी है उसकी क्रेडिबिलिटी को आप जांचिए। ठीक है, वो कैसे जांचेंगे? हाँ, उसके जांचने के कई तरीके हैं। सबसे पहले तो जैसे ECGC है, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, या डन एंड ब्रेडस्ट्रीट है जो कॉर्पोरेट है। ये लोग थोड़ा पैसा लेते हैं, 8-10 हज़ार रुपये लेंगे आपसे, या ECGC की तो मेंबरशिप भी है पूरे साल की। सो दे कैन वेट फॉर एनी कंपनी इन द वर्ल्ड कि उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उनकी रेटिंग क्या है। अगर उनकी रेटिंग अच्छी है देन वी शुड ऑल्सो लुक एट अदर थिंग्स, जैसे कि उनकी वेबसाइट है कि नहीं है, सोशल मीडिया में प्रेजेंस है कि नहीं है, जो एड्रेस दिया है वो गूगल मैप पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। मतलब जैसे बाहर के क्लाइंट्स हमें इवैल्यूएट कर रहे हैं, वी शुड आल्सो इवैल्यूएट द बायर। ऑब्वियसली यार, हम इन्वेस्ट कर रहे हो ना। अगर आपको कोई बायर ऐसा मिल रहा है जो पहले पूरा पैसा दे रहा है, फिर तो फिर चलेगा। तो कोई भी कंपनी आया। राइट, मैं कह रहा हूँ अगर कोई एडवांस में देता है फिर नहीं, 100% एडवांस कोई देता नहीं है। अगर कोई देता है तो ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर क्यों वेट करना है हमें। लेकिन इवेंचुअली अगर आप किसी को भी कुछ भी क्रेडिट दे रहे हो, मतलब 50% भी अगर वो कहे कि भैया मैं तेरे पे भरोसा करता हूँ, 50% एडवांस दे रहा हूँ, 50% जब मेरे पास मटेरियल आ जाएगा तब दूंगा। सो देन यू हैव टू फाइंड आउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ बायर, दैट्स स्टेप 1। अगर वो क्रेडिबल है, बिजनेस तभी शुरू करना चाहिए। नंबर 2, जो भी आप बहुत सारे सिस्टम हैं, डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन है, LC है, तो आप ऐसा मेथड चूज़ कीजिए जिसमें कि डॉक्यूमेंटेशन बैंक से बैंक हो। जब आप डायरेक्ट क्रेडिट देते हो लोगों को तो आपका पैसा डूबने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। गॉट इट। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एक्सपोर्ट शुरू करना चाहे, अपनी पेमेंट की सिक्योरिटी, बिजनेस हो चाहे ना हो, पेमेंट की सिक्योरिटी सबसे पहले है। संदीप, मुझे बताओ कोविड में what happened with the export market or how hard COVID hit you and your business? सी पर्सनली अगर आप पब्लिशिंग इंडस्ट्री की बात करें तो ऑब्वियसली उस टाइम पे क्योंकि स्कूल्स बंद थे और मेजर पब्लिशिंग की जो टर्नओवर आती है वो स्कूल्स के थ्रू आती है, सो दैट मार्केट वाज हिट वेरी बैडली। सो मतलब ऑलमोस्ट फॉर 2 years इन द स्कूल्स देयर वाज हार्डली एनी बिजनेस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। सो कितना रेवेन्यू था और कितना कम हो गया, अगर वो थोड़े फिगर्स बता पाएं? आई थिंक रेवेन्यू का मेजर फ़र्क जो ज़्यादा टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग करते हैं उनको बहुत ज़्यादा पड़ा। जो ट्रेड पब्लिशिंग करते हैं उनका ऑनलाइन सेल्स बहुत बढ़ गया। हाँ, राइट। तो क्योंकि घर बैठे थे बच्चे तो मतलब एवरीबडी वाज बाइंग क्वाइट अ लॉट। सो ऑनलाइन सेल से आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंडियन कंपनीज आई नो ऑफ माय फ्रेंड्स एंड अस, वी आर एबल टू मैनेज द फ्लो ऑफ मनी बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन सेल्स। बट इवेंचुअली ओवरऑल इंडस्ट्री का अगर देखा जाए तो देयर वाज अ ह्यूज डिप, स्पेशली टेक्स्ट बुक इंडस्ट्री में। So Sandeep, what are the biggest challenges which an Indian business owner faces when he is trying to, start an export business? Well, there are a lot of challenges, but as I said, जो major challenges हैं, सबसे पहले तो ये है कि पहला client कैसे acquire करें. You know, that start is always very important for any business. Secondly, how to grow that base, how to consistently work on, growing that base of buyers. Thirdly, of course, the deliverables. इंडिया में हम लोग जो भी प्रॉमिस करते हैं
So we need to start delivering it, well on time with good quality. India is really not known for packaging standards. तो वो एक एरिया जहाँ पे हम काफ़ी काम कर रहे हैं लोग, बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन. तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. सो कहीं ना कहीं जो कंसिस्टेंसी मिस हो जाती होगी, कि इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट, राइट, फ्रॉम द टाइम दे हैव जनरेटेड इंक्वायरी टू द टाइम व्हेन यू आर रिस्पॉन्डिंग विद द कोटेशन एंड कन्वर्जन. एब्सोल्युटली, बट वो एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. राइट. एक इंटरनेशनल बायर है. देखो इंडिया में बायर्स होते हैं, थोड़ा बहुत टाइम प्लस माइनस में चलता है. इंटरनेशनल बायर का 2 मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं. टाइमली डिलीवरी, whatever you said, good quality of course, and communication on all the time. A lot of time people don't communicate. तो फॉर दैट आई थिंक वहाँ पे मेरा फोटे आ जाता है, विच इज़ ऑटोमेशन. Yeah, I know, absolutely. In fact, something which you teach people in terms of automation and having everything ready on board, something we started almost like in 2000. उस टाइम पे हमने, क्योंकि हमारे क्लाइंट बोलते थे यार मेरा प्रोजेक्ट कहाँ है, मतलब हम 50 किताबें बना रहे हैं उसकी, तो हर किताब का कहाँ है. सो आई मीन एवरी टाइम गिविंग आंसर फॉर अस इज ऑल्सो काइंड ऑफ टीडियस. सो फिर उस टाइम पे हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया था, जो अब आप गूगल ऑटोमेशन से या अपने जो भी ऑटोमेशन से कराते हैं, उसके अंदर क्लाइंट लॉग इन करता था और उसको क्लियर कट पता लग जाता था कि कहाँ पे उसका प्रोजेक्ट है. सो दैट मेड एवरीथिंग द लाइफ सो सिंपल. सो वी ऑल्सो हैव अ सिस्टम लाइक दिस विच इज कॉल्ड एफएमएस, फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें इंटरनली टीम को भी पता चलता रहता है कि कौन सा ऑर्डर किस स्टेज पे है, और क्लाइंट को भी व्हाट्सएप नोटिफिकेशन पहुंच जाता है. हाँ, अब कोई क्लाइंट चाइना में बैठा है, वहाँ व्हाट्सएप चलता नहीं है, वो अलग बात. सो वो अलग बात है, बट जिन जिन कंट्रीज में व्हाट्सएप चलता है उनको डायरेक्टली वहाँ पे नोटिफिकेशन पहुंच जाता है. आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में चलता तो है ही. राइट राइट. सो वी हैव आई थिंक फ्यू कॉमन स्टूडेंट्स एज वेल. मैं भी काफ़ी एक्सपोर्ट स्टूडेंट्स को कोच कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ऑटोमेशन, और मुझे लगता है कि कोई भी बिजनेस करो, चाहे एक्सपोर्ट है इंडिया में, अगर आपका इंटरनल सिस्टम्स रेडी नहीं है तो आप बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. सी आई दैट्स व्हाट आई टेल पीपल कि जब कोई नया बंदा आता है, बोलता हूँ एक्सपोर्ट सेल्स रेडी हो. हाँ, सेल के लिए तो हमेशा ही रेडी है ना, बिजनेसमैन हमेशा ऐसे ही बोलता है. बट व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट सेल्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स फॉर विच यू हैव टू बी रेडी. फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई बंदा बोले मुझे 1 कंटेनर माल चाहिए, तो आपके पास पता होना चाहिए कि 1 कंटेनर में कितना माल जाएगा. हाँ, बताएंगे आप कितना माल जाता है? सो कंटेनर बेसिकली 2 तरीके के होते हैं. 20 फीट 40 फीट कंटेनर हैं, और बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं, बट मेजरली 2 टाइप के कंटेनर हैं. और उसमें एक स्पेसिफिक CBM होता है, वैल्यू. हाँ, उतना जाता है, उतना वेट जाता है. राइट. तो वो कैलकुलेट करने के लिए आपको जो भी आपका कार्टन पैकिंग है, उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हो. लेकिन क्या है कि जैसे जो हम एक्सपोर्ट के लिए हम लोग कैटलॉग्स बनवाते हैं, या जो हम सिखाते हैं लोगों को, उसमें हम कहते हैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट आप देते हैं तो उसकी डिटेलिंग में ये ज़रूर डालिए कि उसकी पैकेजिंग क्या है, एक बॉक्स में कितने प्रोडक्ट आते हैं, राइट. और उसकी CBM वैल्यू क्या है. तो वो एक्सपोर्ट रेडी का मतलब है कि जैसे आप बोलते हैं ना, एवरीथिंग ऑन द डैशबोर्ड. या सो वो एक डैशबोर्ड ज़रूरी है, जिसमें कि अगर क्लाइंट अक्रॉस बैठा है, अगर मैं आपसे बाई चांस मिल पाया एज ए बायर, आप मुझसे कुछ बात कर रहे हो, कोई ऑर्डर की बात कर रहे हो, तो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होनी चाहिए. अगर वो बोले कि मैं 1000 की जगह 5000 लूँगा, तो क्या प्राइस होगा, क्या प्राइस होगा, बिकॉज यू कैन कैलकुलेट द प्राइसिंग फॉर द कार्गो एज. यस यस. और अगर मैं मान लो ये कोई जैसे पेपर का होता है कि यार मैं 130 ग्राम की जगह 100 ग्राम पेपर लगाऊंगा, तो क्या फ़र्क पड़ेगा. तो अगर मैं बोलूँगा आई विल गेट बैक टू यू, तो दैट वुड बी लाइक अ लॉन्गर प्रोसेस. सो एज एन एक्सपोर्टर आपको ये सब चीज़ें फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए. मुझे एक क्लाइंट है रजत बजाज, और ऑटोमोबाइल पार्ट मैन्युफैक्चरर हैं, जो 15 कंट्रीज़ में अपने पार्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं. ओके. बट इंडिया में भी एक्सपोर्ट करते सेल करते हैं, बट ही सेज कि ज़्यादा बिजनेस और ज़्यादा बेटर क्लाइंट्स बाहर मिलते हैं. तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट, कि अगर क्लाइंट्स बाहर से ज़्यादा मिल रहे हैं, इंडियन क्लाइंट्स, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है व्हाइल डूइंग बिजनेस विद इंडियन क्लाइंट्स एंड फॉरेनर क्लाइंट्स? सो आई थिंक डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, बट हमारे इंडिया में खासकर पब्लिशिंग में ये प्रॉब्लम है कि कोई भी जो सेलिंग होती है वो कैश पे नहीं है. पहली बात तो मेजर जो सेलिंग है वो क्रेडिट पे है. आपका डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है, आपका रिटेलर्स नेटवर्क है, वो सब एक समझिए कि क्रेडिट पे जाता है. 90, 120, 150 डे तक का क्रेडिट होता है. और कभी भी एज अ पब्लिशर, मतलब मैं जब पब्लिशर मिलता हूँ, जैसे जर्मनी के मेरे फ्रेंड्स हैं या कहीं और के फ्रेंड्स हैं, उनका 90% टाइम जाता है कि नया क्या क्रिएट करें, राइट, व्हाट बेटर वी कैन डू फॉर केस, क्या नया निकालें, इनोवेशन, न्यू प्रोडक्ट्स. हमारे यहाँ मेरे ख्याल से ज़्यादातर पब्लिशर 80% टाइम कैसे जाता है कि भैया ये चक्कर कैसे घुमाएं,
बिकॉज पेमेंट्स का टाइम का सिस्टम यहाँ है ही नहीं इंडिया में। एक्सपोर्ट क्लाइंट्स का जो फ़ायदा रहा, मेरे को खासकर फ़ायदा रहा कि हमने बड़े प्रोजेक्ट्स किए। तो जब हम राइट्स बेचते हैं तो उसमें तो 100% एडवांस आता ही आता है। आई मीन यू डोंट गिव राइट्स विदाउट गेटिंग द मनी। सेकेंडली, जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स करते हो तो उसका एक बेनिफिट ये है कि चाहे मार्जिन्स कंपैरेटिवली कम है लेकिन पेमेंट इकट्ठी आती है। सो व्हेन यू गेट अ पेमेंट इकट्ठी $50,000, $60,000, तो जो भी आपका पोर्शन है यू एंजॉय दैट मनी एज अ बिजनेसमैन। सो इंडिया का जो सबसे बड़ा चैलेंज है दैट इज़ द साइकिल ऑफ मनी। वेर इन एक्सपोर्ट के अंदर 90% में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप अगर प्रॉपर तरीके से, जैसे मैंने पहले बात किया कि डॉक्यूमेंटेशन सही रखें, अपना सिस्टम सही रखें, ड्यू डिलिजेंस अच्छे से करें, सो दिस ऑलवेज मोर ग्रोथ। और क्लाइंट को बनाना पहले बार टाइम लगता है, बट वंस यू हैव मेड अ क्लाइंट, then the lot, we call it marketing lifetime value. So lifetime value for client is huge. Seriously, right. And बहुत सारे टाइम मैंने देखा है कि the companies grow together. Absolutely. If you start communicating with your client on a regular basis कि यार हम क्या और कर सकते हैं, बॉस क्या नया करें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी हमेशा स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि एक क्लाइंट की एक जर्नी है। फॉर एग्जांपल, आपको कोई इंक्वायरी आई और लोग बोलते हैं कि कस्टमर इज़ द किंग, और द डिफरेंस है, प्रॉस्पेक्ट किंग नहीं है, कस्टमर किंग है। जब एक साथ वो एक बार आपके साथ बिजनेस करने लग जाए, देन यू नीड टू ट्रीट देम लाइक अ किंग। यस, बिफोर द प्लेस एन ऑर्डर, देन यू कैन शो कि ओके ये हमारा प्रोडक्ट है, ये प्राइस इससे कम नहीं करेंगे, यू कैन थ्रो सम टेंट्रम्स, बट एक बार ऑन बोर्ड आ गए ना, यू नीड टू गिव द बेस्ट सर्विस। लोग उल्टा करते हैं, लोग मतलब जब तक क्लाइंट नहीं आ रहा है तब तक दिखाते सिर पे top बिठा class के है, रखते yes. हैं कि सर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और जैसे ही क्लाइंट ने पेमेंट किया, जैसे बिजनेस शुरू हुआ, उन्हें लग रहा है कि चलो एक पेमेंट आ गई, अब नेक्स्ट क्लाइंट की तरफ दौड़ते हैं। तो वो एक रिलेशनशिप है क्लाइंट से बिल्ड होने की, वो भूल जाते हैं। एंड दैट्स व्हाट आई थिंक इंडियन बिजनेस ओनर्स नीड टू लर्न, कि पहले प्रॉस्पेक्ट कस्टमर, देन यू नीड टू मेक देम लॉयल कस्टमर, एंड देन यू नीड टू मेक देम ब्रांड एम्बेसडर, सो दैट वो जहाँ भी जाए आपके बिजनेस के बारे में बात करें। सो व्हाट आर योर टेक ऑन दिस? आई थिंक जो आपने बोला, स्पेशली इंडिया की सर्विसेज इंडस्ट्री के लिए तो बहुत ज़्यादा सेट है। We've been working with a lot of companies and we found that when they start, I mean, they show you everything so perfect. It is like हम जब डिज़ाइनिंग करते हैं तो अपने बेस्ट डिज़ाइनर का सैम्पल भेज दिया, और इवेंचुअली जो आप प्रोजेक्ट करोगे वो बेस्ट डिज़ाइनर तो नहीं करेगा ना। द बिग प्रोजेक्ट हैज़ टू बी डन बाय मोर पीपल। सो वो एक डेफिनेटली चैलेंज है। बट आई वुड से कि एज अ कंट्री जो मैंने प्रोग्रेस देखी है लास्ट 20-22 सालों में, जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं जो कर रहे हैं इस समय, दे हैव बिकम वेरी क्वालिटी कॉन्शियस। जो कमिटमेंट वो कर रहे हैं, चाहे वो वर्बल है चाहे राइटिंग में है, दे आर स्टिकिंग टू इट, एंड दैट इज़ वाई आई थिंक इंडियन एक्सपोर्ट इज़ ग्रोइंग। और कितना बड़ा मार्केट है अभी इंडियन एक्सपोर्ट्स का? देखिए, इंडिया का लास्ट ईयर का एक्सपोर्ट प्रोडक्ट और सर्विसेज मिला के अराउंड $650 बिलियन का रहा है लास्ट फाइनेंशियल ईयर। गाइस, $650 बिलियन की अपॉर्चुनिटी है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? If you have a product which you can sell outside in other countries, then make sure you start trying it out, and we will learn from Sandeep as well कि जो LinkedIn एक specific tool है, उसको ये कैसे use करते हैं to get more clients. So we will keep asking about these questions. And अब तक के इंटरव्यू में आपका सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा है? Tell me in the comment box. And if you can recommend me other experts who you want me to invite in this podcast, you can recommend me that. Make sure you hit the subscribe button and you hit the bell icon, and share this video with other business owners who want to start their export business. So Sandeep, coming back to you, I think 1998 में जब आपने शुरू किया versus now, speed काफ़ी इंक्रीज हो गई है। लाइक पहले कई साल लग जाते होंगे बिजनेस को खड़ा करने में, अब तो मतलब विद इन फ्यू मंथ्स स्टार्टअप्स आ रहे हैं और $multi-billion वैल्यूएशन कर रहे हैं। अगर मैं अपनी ही बात करूँ कि कोविड टाइम पे वी वेंट फ्रॉम ऑफलाइन ट्रेनिंग्स टू ऑनलाइन, और इस टाइम पे करीब 15 कंट्रीज़ हैं जहाँ से मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं और हम उनका बिजनेस ऑटोमेट करते हैं। एंड मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आपने शुरू किया था, वॉज इट अ केक वॉक या फिर वॉज इट रियली टफ उस टाइम पे 1998 में? इट वॉज नॉट अ केक वॉक एट ऑल। आई थिंक आई स्टिल रिमेंबर पहली बार जब मैं एज ए पोर्टफोलियो लेके गया डिज़ाइनिंग का, और फ्रैंकफर्ट में मैंने बताया जैसे कि मैं पहले ट्रिप पे गया था। सो आई वेंट टू अ डिज़ाइनर फ्रॉम यूके कि यार हम आपको प्रोजेक्ट बहुत मिलते हैं, हम आउटसोर्स कर देंगे। सो ही जस्ट लुक्ड एट द पोर्टफोलियो एंड ही सेड, यार देखो यू गाइज आर वेरी गुड एट IT, मतलब इंडिया वाले IT में तुम बहुत बढ़िया हो, बट क्रिएटिव के अंदर तुम गाय भैंस बना लाओगे, अजीब चेहरे बना दोगे, सो सॉरी। तो मैंने कहा आप एक ट्रायल के लिए मुझे कोई
8 दे दीजिए. कहता no, I don't want to waste your time and my time. But I really felt offended. Seriously. I mean, मुझे लगा यार ये तो मतलब बंदे ने सुपर बेइज्जती कर दी. So I came back and आने के बाद I have spent a lot of time in terms of finding new artists. So I went to Calcutta. We did interviews on पूरी लाइन लगी हुई थी आर्टिस्ट की. That place is amazing in terms of people, artists. और every second person is artist there. मतलब passion है बहुत ज़्यादा. So we had chosen people, we got them to Delhi. फिर हमने international designers से मिलके कुछ उनको train किया. And then next year I went again. Thankfully he gave me the meeting. So then I showed him my portfolio. And he looked at it and kept looking at it and he said कि boss, you guys are going to have chicken and we're going to have peanuts. मैंने उनको बोला नहीं but मेरे को पक्का पता था कि उनको peanuts भी नहीं मिलने वाले अब. Because they were charging pretty hefty amount, from the publishers in UK, wherein we जो हम लोग कर रहे थे उससे भी हमने काफ़ी अच्छे रेट्स लिए उस टाइम पे. But still we were very cost effective. And in terms of art creation, I think India has really excelled. So start आसान नहीं था, but वही है कि ये ज़िद थी कि अपने आप को प्रूव करना है. और इंडिया को आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज़ हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं इस इंडस्ट्री के जिन्होंने बहुत काम किया है और काफ़ी अच्छा नाम कमाया है. और आज की डेट में पूरा वर्ल्ड के पब्लिशिंग फ्रेटर्निटी इंडिया की तरफ देखती है कि अगर हमें कुछ काम कराना है. और जितनी बड़ी कंपनीज हैं सबके ऑफिस हैं इंडिया में. सो दैट इज़ बिकॉज वी इंडियंस आर एक्सेप्टेड एवरीवेयर नाउ. Yeah, totally agree. And I think past few years post COVID, एक थोड़ा सा एक नया एटीट्यूड आ गया है, एक नई एनर्जी आ गई है बिजनेस ओनर में, यार कुछ करना है, राइट. और आई थिंक गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है और बाकी कंट्रीज़ का भी जो एक रुख है वो चाइना से थोड़ा सा इंडिया की तरफ शिफ्ट हुआ है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? एब्सोल्युटली. आई थिंक एज आई वाज टेलिंग कि $650 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया. और अभी जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, सो विद द इंडियन गवर्नमेंट ट्राइंग टू बिल्ड अप एक्सपोर्ट्स, सो 3-4 महीने पहले, इनफैक्ट 6 महीने पहले हमारा टारगेट था $1 ट्रिलियन बाय 2030. But looking at the growth, now the government has target of $2 trillion by 2030. And सिर्फ बात करने के लिए नहीं है, they are doing a lot of stuff. We signed up FTAs, foreign trade agreements with Dubai, with Australia. Already UK से काफ़ी higher level पे बात चल रही है. I'm sure it will be finalized very soon. And of course, after that, I've heard, I mean, I'm not really too much sure about the inside, that European Union से बात चल रही है. And if we can get that, I'm sure the export is going to boom. I mean, Right. 2 trillion is very achievable, I would say. Awesome. So, Sandeep, आपने अपने बिजनेस के बारे में बताया, challenges बताया. If I ask you in today's time, how does your day look like? Like, what do you do in the entire day as an entrepreneur? So my day, of course, starts with a cup of tea. I love my tea, and that's how it starts. And after getting fresh and ready, the first 1 hour of my day always goes to LinkedIn. LinkedIn every morning, 1 hour. Every morning 1 hour. That's what I tell to every student, every person I consult or work with, that it has really changed, my understanding of business. It has helped me collaborate. It has helped me get clients, and that's really something which is helping me grow further. In fact, something I'm building now is building a group of experts like me who are into import-export thing. And my idea is to have at least 100 plus people in that network so that we can help companies. मतलब इंडिया की कंपनी है, उसको कहीं जाना है, so that person in that country can help. उनको इंडिया में आना है, of course I can help them. So idea is to build up a network. And of course, LinkedIn for B2B business, for collaborations, is just the next level. So like I use Sales Navigator, which is a tool of LinkedIn for generating inquiries, and my team also keep posting a valuable content, and we also get humongous amount of inquiries from LinkedIn. What about you? How do you use LinkedIn to generate inquiries? So I think personally, I of course again put good content, value addition in terms of the content we do. I keep on connecting the right people who are required for my business. And we do generate leads. I'm not using Sales Navigator, but there's other tools which we used. We use Lucia and some other tools as well. Idea is for an exporter. What we tell them is that when you are doing data research, I always tell that
prospecting is something which should never stop in any company, but exporter के लिए तो मतलब वो गुरु मंत्र है कि prospecting तो आप करते रहें रेगुलर, और जो prospect है आपका उसकी कंपनी को आप लिंक्डइन पे फॉलो करो अगर वो लिंक्डइन पे है तो। कनेक्ट विद द पीपल जो उस कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं, उसके अंदर जो भी लोग लिंक्डइन पे हैं आपके काम के जो हैं उनसे कनेक्ट कीजिए। हाँ, तो मतलब जब लिंक्डइन पे आप किसी कंपनी को फॉलो करते हो उसमें ऑप्शन होता है पीपल विद इन दैट हाँ, कंपनी, यू आर you एबल go टू to people। तो वो पीपल में क्या 2-3 की पोजीशंस के लोग होने चाहिए, इनसे कनेक्ट करना चाहिए? ये देखिए वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। अगर बड़ी कंपनी है तो जस्ट ओनर्स विल नॉट हेल्प यू। यार मतलब अगर आप किसी सीईओ से बात करोगे तो मे बी विल नॉट बी इंटरेक्टिंग विद यू। यू नीड टू लुक एट लाइक सोर्सिंग गाइज और प्रोक्योरमेंट गाइज। सो वो बिजनेस टू बिजनेस। अगर छोटी कंपनी है कोई, जैसे नॉर्मल बायर्स होते हैं, इंपोर्टर्स होते हैं, वो स्टैंड अलोन कंपनी है, 1-2 लोग हैं। कन्वर्जन रेशियो कितना है? मतलब अगर कोई एक मैन्युफैक्चरर 100 कंपनीज से कनेक्ट करता है और मे बी उनको एक लिंक्डइन मैसेज भेजता है दैट आई वांट टू सेंड अ सैंपल, आपके एक्सपीरियंस में 100 अगर कंपनीज को पिच करें तो क्या कन्वर्जन रेशियो इन टर्म्स ऑफ पीपल एक्चुअली रिप्लाइंग बैक एंड देन पीपल आस्किंग फॉर द सैंपल एंड देन एक्चुअली यू गेटिंग द ऑर्डर? ऑल्दो इट वेरीज बिजनेस टू बिजनेस, बट फिर भी अगर इसको जनरलाइज किया जाए और एक परसेंटेज निकाला जाए, आपके एक्सपीरियंस में क्या लगता है? देखो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा हम अलग सोचते हैं। सोचते ये हैं कि लिंक्डइन इज़ टू बिल्ड अप रिलेशनशिप फर्स्ट, और उसके लिए सेलिंग जो है वो बहुत लेटर पार्ट में आती है। राइट। सो व्हाट आई से इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज स्टार्ट बाय सेंडिंग अ पर्सनलाइज्ड मैसेज फॉर कनेक्शन। और पर्सनलाइज्ड मैसेज में आपको उसके बंदे के बारे में स्टडी करके यू नीड टू कॉम्प्लीमेंट दैट पर्सन, और मे बी इफ़ यू आर आई मीन जेन्युइनली, इट्स नॉट लाइक ट्राइंग टू से कि बहुत अच्छा करते हो एंड ऑल दैट स्टफ। सो यू नीड टू जेन्युइनली राइट समथिंग टू हिम सो दैट it can get connected. So connection percentage will go at least 3 to 4 times if you're doing personalized connection request. Number one. Once a person is connected, you have to create a journey. I mean normally I tell my people कि उनको अलग से एक शीट बनाओ, कनेक्शन जिससे भी हो गया शीट बनाओ, थैंक यू as soon as you're connected. After 6-7 days, comment on something which he has written. बाय द वे ये गूगल लिंक्डइन का डेटा गूगल शीट पे भी आ सकता है। हाँ, तो वही मैं बोल रहा मतलब हूँ। जिनसे आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी है वो लिंक्डइन पे गूगल शीट पे आके उसमें आपको रिमाइंडर आ तो सकता उसमें रिमाइंडर डाल के जर्नी बनानी चाहिए आपको। जर्नी ये है कि पहले थैंक यू किया, 6-7 दिन में एक आध कॉम्प्लीमेंट दिया, 15 दिन में एक बार और कनेक्ट किया, एंड देन ट्राई टू एक्सप्लोर अ स्मॉल मीटिंग ऑन जूम। लेट्स मीट ईच अदर एंड मे बी टॉक अबाउट इंडस्ट्री। आई मीन यू शुड नेवर स्टार्ट पिचिंग टू अ पर्सन इमीडिएटली। अगर आप पर्सनली देखो, अगर मेरे को जैसे लोग कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं, हम कनेक्ट करते हैं, अगर पहली बारी में कोई बिजनेस की बात करता है तो 99% मैं दोबारा उस बंदे को देखता भी नहीं। सेम हियर। सो वो हमारे और तुम्हारे लिए नहीं है, सबके लिए ऐसा ही है। राइट। सो बिल्ड अप द रिलेशनशिप एंड वंस यू रीच अ लेवल, दैट इज द टाइम यू टॉक अबाउट कोलैबोरेशन। No, I think that's a wonderful point that you've shared. So Sandeep, nowadays social media is helping business owners big time grow. I've seen manufacturers, traders, service providers using social media big time, and our organization as well could reach out to like last year 90 lakh plus people on social media. Oh, that's a good number, man. Yeah, that's really good. So I want to ask from you, specifically in the export business, how does social media help? It helps tremendously. So first of all, I think exporter के लिए it helps in two ways. Number one is of course create a good brand presence digitally, which is very important because आज की डेट में अगर आप किसी को भी ईमेल भेजोगे या कम्युनिकेशन भेजोगे तो पहली चीज़ वो चेक करेगा आपकी वेबसाइट, और दूसरी चीज़ वो 99% लिंक्डइन या आपका फेसबुक इंस्टा डिपेंडिंग ऑन किस इंडस्ट्री से है। तो वो अगर उसके अंदर एक समझिए ब्रांड प्रेजेंस नहीं देखता तो ऑटोमेटिकली आपका it goes on a negative side. But then other way around, if you're doing it right, and that definitely that's a big plus. So essentially it helps in two ways. One is creating a big brand, and secondly into lead generation. So through performance marketing, I think there is a lot of lead generation happening. The way it happens in India, you can generate leads. Similarly, you can generate leads across the world using various performance marketing tools. और काफ़ी इफेक्टिव है। जो क्वालिटी ऑफ लीड जनरेशन है वो काफ़ी इफेक्टिव है। ऑसम। सो आपने लिंक्डइन की बात की, यू हैव एनी टिप्स फॉर इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब, या फिर लिंक्डइन की स्ट्रैटेजी ही फेसबुक या इंस्टाग्राम पे चल सकती है? एक्चुअली देखो लिंक्डइन है मोर और लेस फॉर B2B। नहीं, नेटवर्क तो है बट मेजरली B2B सेगमेंट के लिए। राइट। और फेसबुक इंस्टा ज़्यादा लाइफस्टाइल वगैरह जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा। आज की डेट में अगर आप फैशन इंडस्ट्री की बात करो
तो इंस्टा पे मेरे ख्याल से उनका एड बजट 90% एड बजट इंस्टा पे होगा. सो अगर कोई कंपनी जो लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट्स में है वो अगर एक्सपोर्ट करना चाहती है तो दे शुड फोकस ऑन इंस्टा एंड फेसबुक एज वेल अलॉन्ग विद लिंक्डइन. Yes, yes. Awesome, great. So, as an export, coach, what is your budding advice to Indian exporters? And post COVID, is there any new opportunity, or what do you think? How is the market looking like after COVID? What do you say? What is the opportunity for Indian exporters right now? I would say opportunity is tremendous because of multiple reasons. Number one is that the whole world is changing. Our neighbor used to do maximum exports. Somehow, I'm not happy about that, but somehow they're struggling. There is no predictability in terms of if somebody orders a goods, whether it's going to come or not. So the whole world is looking towards alternatives. And India really stands out in terms of a lot of things. But the onus is on us now. The onus is on manufacturers. To actually prove that we are worthy Yes. to actually deliver the right. Yes. So once we start doing that, which we are doing, जो हम लोग कर रहे हैं, I'm sure we'll be able to achieve $2 trillion very, very fast. But then again, सिर्फ कहने से और बात करने से नहीं होगा. हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी. We have to be ready with that kind of products. We need to start innovating. We need to be consistent. तो अगर ये सब करेंगे जो हम कर रहे हैं अभी, तो I'm sure Indians have a great future in terms of exporting goods. एंड जैसे हमने आईटी में अपना नाम कमाया है, ऐसे ही एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब, एज अ मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, वी विल बी एबल टू डेफिनेटली पोजीशन आवरसेल्व्स इन अमंग्स द टॉप. सो आई थिंक जो आपका अभी तक डिस्कशन में आपने पॉइंट बोला है कि एक तो ब्रांड इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ इफ यू वांट टू गेट इंटरनेशनल क्लाइंट्स, दे लुक फॉर ब्रांड, दे लुक फॉर पीपल हु आर डिलीवरिंग द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, टाइमली डिलीवरी. और वो तभी हो पाएगा जब आपका इंटरनल चीज़ें स्ट्रक्चर्ड है, तो वहाँ पे आपकी सिस्टम ऑटोमेशन होना चाहिए. आप अगर कुछ स्टेप्स बता पाएं कि हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू ग्रो, इफ यू हैव एनी स्टेप्स इन माइंड which our viewers can follow and literally take things to the next level. Absolutely. I would love to share that. So there are certain steps which you follow and which you later on consistently keep on doing. Right. It can really help you grow your business into multiple countries. So guys, focus on these steps because this is the conclusion of the video, and these steps if you follow, you shall see the humongous success in your business. So first of all, start with you need to, if you're a new exporter or even if you're an existing exporter, you need to first of all shortlist your products. Shortlisting the products. Yeah. Maybe you have 1,000 products selling in India, but for export market, you need to choose product very judiciously and based on the product export potential. Okay. So you first of all shortlist the products. Then find out the focus country as we discussed. On multiple tools, you need to work on that. Find out the focus countries to market. Once you finalize the focus countries, you need to be marketing ready. And when I say marketing ready, you need to have a great website. Again, the purpose of website is not to sell. The purpose of website, especially I'm talking about B2B website for export, is to create credibility. So credibility numbers, your vision, mission statements, the culture you have in your company, the values you have, the CSR things you do. So trust building. Yeah, people should look at you as a company who's structured and who's focused. तो यहाँ पे ना मैं एक पर्सनली फॉर्मूला फॉलो करता हूँ विच आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर, जिससे इंस्टेंट ट्रस्ट क्रिएट हो सकता है ऑफ समबडी हु इज वाचिंग योर वेबसाइट. सो ट्रस्ट ना 3 C's में आता है, 3 C's. एक है कि कॉम्पिटेंस, हाउ गुड यू आर इन योर प्रोडक्ट और सर्विस, और वो अगर हम खुद बताएंगे कि हम इतना अच्छे हैं, पीपल विल नॉट बिलीव. सो दैट विल कम फ्रॉम टेस्टिमोनियल्स एंड रिव्यूज. तो आपके वेबसाइट में कुछ टेस्टिमोनियल्स हो, रिव्यूज हो. सेकेंड इज कंसिस्टेंसी. So you need to show how many years you are into business, how many orders have you done, like that kind of number. So consistency, competence and character. So whatever you're doing, why are you doing it? So अगर एक कोई vision mission साथ में add हो जाए, so then exporter can see that the client can see, okay, this company is beyond making money, they are doing something bigger than the company itself. True. And of course the value proposition you are bringing to the table, why, how you are unique. Yeah. Why should I work with you? The USPs. So all these should be part of that.
You need to create a corporate profile, a company profile. So I'll say. second step was website. So website, a company profile. हाँ, उससे पहले था शॉर्ट लिस्टिंग. ठीक है. कंपनी प्रोफाइल बनाएंगे साथ में, स्मॉल प्रोफाइल विद ऑल द डिटेल्स, एंड देन वी ऑल्सो क्रिएट अ प्रोडक्ट कैटलॉग. प्रोडक्ट कैटलॉग, एज आई सेड इनिशियली ड्यूरिंग द इंटरव्यू, you need to have details about the specifications of packing and CBM and all that stuff. So ये सब रेडी होता है. Then you start first of all shortlist the target segment कि आप B2B में काम करना चाहते हैं या B2C में करना चाहते हैं या दोनों में करना चाहते हैं. तो you define on that. Based on that, अगर आप B2B में काम कर रहे हैं तो what would be your target segment? You want to work only with importers, or you also want to work with distributors, or you have a plan to even go to the retailers. So you need to shortlist that, and once you shortlist that कि ये define हो गया target segment, आप उस target segment के buyers को ढूंढना शुरू कर दोगे. So you know वो लिंक्डइन पे B2B में. LinkedIn में भी है, और देर करीबन 20-22 टूल्स हैं. गूगल मैप्स इज़ अ वेरी गुड मेथड, एंड एम्बेसीज के थ्रू डेटा मिलता है. बहुत सारे और मेथड्स हैं, तो उसके थ्रू आप प्रोस्पेक्टिंग चालू करो. जो मैं बोलता हूँ कि कभी आपको रोकनी नहीं चाहिए. कंपनी में 1 या 2 बंदे डेडिकेटेड होने चाहिए, तो रोज़ 40, 50, 60, 70 प्रोस्पेक्ट निकाल रहे हैं आपके लिए. एंड देन वंस यू गेट द प्रोस्पेक्ट, यू स्टार्ट नर्चरिंग देम. नाउ नर्चरिंग अगेन विल कम थ्रू ईमेल्स, विल कम थ्रू लिंक्डइन कनेक्शंस, will come through WhatsApp marketing. WhatsApp marketing it's a game changing nowadays, because I've seen companies like Zomato, companies like Make My Trip, they're using WhatsApp in such a creative way that they're sharing their offers, they are adding value as well as they're selling as well. So they're doing everything with that. So WhatsApp पे कुछ आपके tips हैं, because I WhatsApp also help students with WhatsApp integration with Google Sheet and all. क्या messages बना सकते हैं? WhatsApp का सबसे पहला टिप तो ये है कि it is not for all countries. It's not for all of तो मतलब हमारे साउथ ईस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में और अफ्रीका में यहाँ पे एक्सेप्टेंस है. अगर आप व्हाट्सअप मैसेज किसी को भेजोगे तो कोई ऑफेंड फील नहीं करता. बट अदर दैन दैट, लाइक यूरोप हो गया, US मार्केट, कनाडा, लैटिन अमेरिका एंड ऑल दैट, अनलेस यू नो देम, दे डोंट वांट यू टू सेंड अ व्हाट्सअप मैसेज. सो अगर आपने ऐसा किया तो मतलब यू विल बी लूजिंग द क्लाइंट स्ट्रेट अवे. इट्स एज गुड एज दैट. सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस. और क्लाइंट कोई बन भी जाए जब भी आपका, यू शुड ऑलवेज आस्क देम कि व्हाट इज़ अ प्रेफर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन. कि भाई आप व्हाट्सएप पे बात करना चाहोगे या ईमेल से ही बात करनी है, तो वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है. सो यू बेसिकली कनेक्ट विद दीज प्रॉस्पेक्ट्स यूजिंग ऑल दीज टूल्स, एंड देन वी कॉल इट इज लाइक वंस दे कनेक्ट बैक टू यू, सो यू व्हाट वी कॉल इट इज अ मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड. सो दे आर नाउ रेडी टू काइंड ऑफ गेट इन टच डायरेक्टली. सो दैट इज़ व्हेन यू कनेक्ट with them, and then you nurture them. You have to nurture those leads, convert them into clients. Again, as I said, as an export sales guy, you need to be ready with that whole dashboard with all the inputs possible, all shipping details, everything should be there with you so that you can answer everything in front of the person. Then of course, try to master the closing techniques. International business में closing techniques बहुत important है, क्योंकि opportunity to meet a person बहुत ज़्यादा नहीं. स्पिन सेलिंग चलती है उसमें. स्पिन सेलिंग भी चलती है, बट आई मीन वन थिंग इज देयर कि डेस्परेट सेलिंग कभी नहीं चलती. Spin selling is more of consultative selling. कंसल्टिंग सेलिंग, या You're just helping them solving their problem rather than pushing your product. नहीं, पुशिंग तो कहीं चलती ही नहीं. तो स्पिन सेलिंग डेफिनेटली चलती है. एंड देयर लॉट ऑफ क्लोजिंग टेक्निक्स इवन वी टीच अवर स्टूडेंट्स, जहाँ से आप सिंपल वे से यू कैन ट्राई टू काइंड ऑफ गेट देम कन्वर्टेड. एंड ऑफ कोर्स वंस दे आर कन्वर्टेड, that is the time you need to really grow your business. So grow your relationship with them slowly, of course. It's not going to be like कि आज बनाया तो कल से. तो संदीप, सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करते हो अपने क्लाइंट्स को? You said 400 clients. So is it through email or do you have a dedicated person? How does it work? Because नहीं, हमारे जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके लिए of course there are people from different countries who are given. प्लस मेरा एक ये है कि मैं every day I talk to one of my clients. वो मेरा पहले से है, मतलब मैं अब तो जूम आने के बाद ज़्यादा हो गया. एवरी डे आई टॉक टू वन ऑफ माई क्लाइंट, हाफ एन आवर इज फिक्स फॉर दैट. आई फिक्स अप इन एडवांस, आई टॉक टू देम. आई डोंट टॉक अबाउट बिजनेस, आई जस्ट टॉक अबाउट व्हाट्स हैपनिंग एंड वर्ल्ड की सब बातें करते हैं. बट नॉर्मली डोंट टॉक बिजनेस, बट इवेंचुअली बिजनेस आ ही जाता है बीच में. बट आई नेवर स्टार्ट सेइंग कि यार क्या बिजनेस दे रहे हो या क्या काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं. नॉर्मली टॉक अबाउट इंडस्ट्री, वी टॉक अबाउट ट्रेंड्स, वी टॉक अबाउट न्यू टेक्नोलॉजीज बीइंग बिल्ट अप. एंड सम ऑफ द कंट्रीज, हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि इंडिया में हैं और बहुत कुछ मिलता है हमें सीखने को. एक और क्वेश्चन मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे
कि रेफरल्स अगर हम देखें 90% बिजनेस ओनर्स चलते ही रेफरल्स पे हैं. They don't do social media marketing, and even if they do, they're not good at it. Many times they have failed. So अगर हम एक्सपोर्ट बिजनेस की बात करेंगे, कोई क्लाइंट हमारा यूएस का है, कोई अफ्रीका का है, हाउ डू यू जनरेट रेफरल्स? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? So, जैसा मैंने बोला कि बिल्डिंग रिलेशनशिप, अब रिलेशनशिप बिल्डिंग में क्या होता है कि रेफरल आपको बंदा वो देगा जो आप उसको कम्पीट नहीं करता. जो कंपीटिंग बिजनेस है उसमें लोग नॉर्मली रेफरल नहीं देंगे. अगर मैं पब्लिशर हूँ और कोई दूसरा पब्लिशर है, आई माइट नॉट गिव. बट अगर मैं एक पर्टिकुलर जॉनर का काम करता हूँ, ठीक है, और दूसरा पब्लिशर वो उसका काम नहीं करता, कुछ और काम करता है, देन he'll surely. So example, I am into business automation and Sandeep is into exports. So I can refer my students to you that, if they want to specifically master the exports, so they can go for it. Absolutely, and of course my people can definitely come to you for getting the automation done. So similarly, non-competing is easy to give referrals. So वो बहुत ज़रूरी है. इसके अलावा जो बिल्डिंग रिलेशनशिप का एक पार्ट आता है वो ये भी आता है कि एज एन एक्सपोर्टर, समथिंग विच मोस्ट ऑफ द बिगर एक्सपोर्टर डू इज एग्जिबिटिंग इनटू इंटरनेशनल एग्जिबिशंस. अगेन यू नीड टू हैव अ बजट एंड यू नीड टू प्लान इट वेल वेरी इन एडवांस, प्लस विजिट्स टू द. इसमें गवर्नमेंट भी तो आजकल कुछ रिबेट देती है ना कि अगर आपको एग्जीबिशन में जाना है तो. हाँ. सो कैन यू टॉक? सो गवर्नमेंट में दो तरीके से रिबेट मिलती है. एक तो जो आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मेंबर बनते हैं, तो उसके थ्रू दे काइंड ऑफ फाइनलाइज सर्टन फेयर्स बेस्ड ऑन द मार्केट डेवलपमेंट. वहाँ पे आपको एक तो सब्सिडाइज स्टैंड मिलता है. मतलब अगर जैसे 5 लाख का मिलता है तो आपको 2.5 लाख का मिलेगा, या 2.5 लाख का है तो 1.25 लाख का मिलेगा. आपने कभी लगाए होंगे? हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट. सो वो है. उसके अलावा ट्रैवल के लिए पैसा मिलता है. बिकॉज मैं लाइक एज एन एंटरप्रेन्योर आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड ऑन गोइंग ऑनलाइन एंड स्केलिंग ऑर्गेनाइजेशन विद ऑनलाइन मेथड. बट आई ऑलवेज बिलीव कि ये जो B2B कंपनीज हैं, इफ दे वांट टू ग्रो एक्सपोर्ट्स, फिजिकली अगर कोई क्लाइंट प्रोडक्ट को टच करके फील करके देखेगा ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर कोई आपके स्टैंड पे आया और उसको प्रोडक्ट टच लगा, बहुत चांसेस हैं कि यू कैन कन्वर्ट देम इजीली रेदर देन हैविंग अ जूम कॉल विद द क्लाइंट. बट पोस्ट कोविड थिंग्स हैव चेंज्ड. नहीं, एक्सेप्टेंस बढ़ गई है, बट केवल अभी भी देखो जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं आज भी उनका मेथड वही है कि ज़्यादातर एक्सपोर्ट के बड़े जो भी 2-3 बड़े इंटरनेशनल फेयर्स हैं, कुछ लोकल फेयर्स हैं, तो उसमें मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अपना बजट देख के मे बी डू 1 or 2 मैक्सिमम इंटरनेशनल फेयर्स. और जो भी आपकी कंट्री फोकस हैं, जो भी आपने 5 कंट्री फोकस करी हैं, अगर वहाँ कोई लोकल फेयर होते हैं तो उसको आप ज़रूर अटेंड कीजिए. एंड अदर देन दैट, जैसे अगर आप एक कंट्री है, कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, यूएई है. यूएई के अंदर आपने प्रोस्पेक्टिंग करी, आपने 100-150 बायर्स की लिस्ट निकाल ली या 200 बायर्स की लिस्ट निकाल ली. सो देन प्लान अ ट्रिप टू यूएई, बट प्लान इट इन एडवांस. इन लोगों को मेल करो, फ़ोन करो, व्हाट्सएप करो, मीटिंग फिक्स करो. इन वन मीटिंग इफ़ यू कैन मीट 6-7 पीपल, आई वोंट से 150 हैं तो 100 से मिलोगे, 6-7 लोग ही मिलेंगे, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू कन्वर्ट बिजनेस एंड स्टार्ट बिजनेस. एंड दैट पर्सनल रिलेशनशिप, नथिंग कैन बीट. ऑसम. मेरे लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस ये हैं कि लोग अगर एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करते हैं, व्हाट आर द मेन रीजंस दे शुड स्टार्ट? बिकॉज अगर किसी का इंडिया में बिजनेस चल रहा है, बढ़िया सेल आ रही है, वैल्यू एडिशन हो रही है क्लाइंट्स को, एम्प्लॉयज़ भी खुश हैं, ग्रोथ हो रहा है, बट अगर उनका पोटेंशियल है बाहर कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करने का, बट व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग कपल ऑफ रीजंस? क्यों करना चाहिए? व्हाई शुड बी एक्सपोर्ट? सी, एक्सपोर्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि हैविंग अ बिगर मार्केट साइज. नंबर 1 दैट, नंबर 2 बेटर मार्जिन्स. सो करेंसी का जो वैल्यू डिफरेंस है, यू आर टॉकिंग अबाउट दैट? नहीं, वैल्यू डिफरेंस तो है, बट वैल्यू डिफरेंस का मतलब ये नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में जो भी चीज़ आप बेचते हैं उसकी जो रिटेल प्राइस है, यूएस में उसका रिटेल प्राइस नॉर्मली 4 to 5 टाइम्स है. बट दैट डजंट मीन कि जो आप यहाँ बेच रहे हो उसका 5 गुना आपको यूएस में बेचने में मिलेगा. अगर आप डायरेक्ट बेच रहे हो, यस मिलेगा, बट अगर आप किसी के थ्रू बेच रहे हो, ही वोंट गिव यू 5 times द मनी, बट definitely will be more than what you are selling or giving it to a distributor here. So more margins in export business than the local customers we are selling into. और इसमें एक सबसे बड़ा कैच है जो आपने जैसे बोला कि यहाँ एस्टैब्लिश बंदा है, अच्छा ब्रांड है, मनी फ्लो अच्छा है, एम्प्लॉयज़ खुश हैं. उस केस में देर आर कंपनीज, इट्स अ लॉन्गर प्लान, द कंपनीज विल सेल ओनली बाय देयर ब्रांड. सो यू स्टार्ट बिल्डिंग अप योर ब्रांड अक्रॉस द वर्ल्ड. तो वो
वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है क्योंकि ऑब्वियसली बैंडविड्थ चाहिए उसके लिए। नॉर्मली क्या होता है कि लोग जाते हैं किसी कंट्री में गए, उन्होंने बोला यार हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर दो, हमारे ब्रांड से बना दो। नायका देख लें, नायका की ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, इंडिया में भी आईपीओ लॉन्च हो गया और मल्टीपल कंट्रीज में वो सेल। सो वही है, वो जो एक फिलॉसफी अगर आपके दिमाग में आ गया, अगर आप एस्टैब्लिश प्लेयर हैं तो मैं किसी स्टार्टअप को कभी ये एडवाइस नहीं देता कि भैया अपने ब्रांड से ही बेच, क्योंकि आपको फ्लो चाहिए। अगर आपका यहाँ फ्लो ठीक है, पैसा बना रहे हैं, सो देन आई वुड एडवाइस कि आप स्लोली अपने ब्रांड को पूरे वर्ल्ड में फैलाओ। स्टार्ट विथ फ्यू कंट्रीज, स्टार्ट सेलिंग ऑनलाइन, ऑफलाइन बेचो, डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ, कंट्री पार्टनर बनाओ। So guys, follow Sandeep on YouTube. His channel name is called Winning Mantra. Okay, he adds some really great value there. Follow him Instagram as well, on LinkedIn as well. And this guy is giving you the advice which he has gained past 22 years. And with his advice, you will make mistakes, but you will be making less mistakes. Agree? Absolutely. Because when we do anything, we're bound to make mistakes. But from the experts like you, वो मिस्टेक्स हमारी 80% कम हो जाती हैं। In fact, if I see my journey of exports, I made mistakes. I learned from my mistakes. I lost money also. It's not 3 मिस्टेक्स बता दीजिए before we wrap up the interview. okay. So I think one is like sometimes you trust someone too much, and I always believe that you need to go the right way. You need to do the paperwork right. बट ये सब बाद में समझ में आया। हमें पहले होता था कि यार ह्यूमन वैल्यू बहुत होती है। तो एक्सपोर्ट में जैसे 3 इंस्टेंस आप पूछ रहे, तो पहला इंस्टेंस ये है कि एक हमारे क्लाइंट थे मलेशिया में, उनको हमने बुक सप्लाई की, कंटेनर। तो एक हमारा बाइंडर था जो बहुत सालों से काम करता था हमारे साथ, उसको हमने वो प्रोजेक्ट दिया बाइंडिंग का, क्योंकि वो बड़ा प्रोजेक्ट था। उसने उस प्रोजेक्ट को डिवाइड कर दिया, अपने पास भी रखा और अपने कोई भाई को दे दिया। और उनमें से किसी ने, अब मुझे नहीं पता किसने, फॉर सम मनी दे हैव यूज्ड अ बिलो स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ ग्लू। Okay. तो कंटेनर गया, कंटेनर में बाई चांस थोड़ा पानी गिर गया था, तो इट वेंट ऑन टू क्लेम। और क्लेम में गया तो क्लेम वाले तो सबसे पहले कंपनीज का ही होता है कि किस तरीके से नेगेट करें, और उनको वो कारण मिल गया। So they have repudiated the claim कि भैया पैसा नहीं मिलना। And this guy, we haven't had any official communication with him. हमने उसको पर्सनली बोला यार तेरी इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम, हमने कभी उसको राइटिंग में नहीं लिखा। And we paid him half the money before, and then he said कि पैसे चाहिए। And eventually, when it went to court, he actually went to court, and then he has won the case. Because he said कि नहीं मेरी तो है ही नहीं है, किताब ही नहीं है। He refused it and then used the legal system, and finally we had to pay him the money. So ये पहला आपका जो लर्निंग है कि पेपर वर्क ड्यू डिलिजेंस करो, डू नॉट ट्रस्ट रैंडमली। मैं कह रहा हूँ अपने भाई के साथ भी अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो पेपर वर्क करो। No, because I think as a business owner you need to be sure that whatever you're doing is right, because it really helps. Absolutely. यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी काम आ जाती है कि पेपर वर्क में आपने ईमेल करा, बट इंटरनली एक्सटर्नली व्हाटएवर डूइंग, जितना आप टेक्नोलॉजी यूज करोगे। नहीं, स्पेसिफिकेशन जैसे राइट करनी है, राइट। अगर उस समय मैंने उसको स्पेसिफिकेशन राइट करके एक पीओ बना के दिया होता, और जो एक्सेप्टेंस है उसके अंदर उसको क्यूसी किया होता, तो वो कभी प्रॉब्लम नहीं होती। सेकेंडली अगेन लाइक दिस वन ऑफ क्लाइंट इन वी हैड अ वेरी बिग क्लाइंट in a European country. So I went to his place and there was a government project, big project, designing का project था, and I'm talking about early 2000, and we signed up a deal of rights of 1 crore rupees. मतलब करीबन मुझे याद है कि हर बात है, I think 2001 और 2002, तो 1 करोड़ का हमने प्रोजेक्ट साइन किया उस बंदे के साथ। उसके घर रहा मैं जाके, अच्छा खातिरदारी हुई, अच्छी दोस्ती यारी हो गई। पेपर वर्क नॉर्मल एग्रीमेंट हमने किया, बट ट्रस्ट ये था कि जो पेमेंट टर्म्स थी उसको हमने उस समय बहुत लाइटली लिया। उसने मुझे $5000 ट्रांसफ़र कर दिया कि बाकी आप भेजते रहना और मैं आपको पेमेंट करता रहूँगा। एंड वी आर एक्साइटेड, मतलब एक नई कंपनी जो एक्सपोर्ट करना शुरू कर रही है, 1 करोड़ की मतलब राइट्स, ह्यूज। मतलब आज की डेट में भी 1 करोड़ के राइट्स आएंगे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। तो उस टाइम तो मुझे लगा कि भाई मेरी तो निकल ली, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। पिवट पॉइंट। हाँ, मतलब ऐसा लगता है ना कि जैसे लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटी आती है कि भाई अब तो नेक्स्ट लेवल होने वाला है।
So we got into, जो किताबें थी रेडी थी, जो नहीं थी, the whole team, I had a huge team at that time, 100+ people. हम लोगों ने किताबें मतलब सुबह दोपहर शाम लग के, and we had good team. We finished the product, the whole project within 2 months. और हमने वेट नहीं करी कि हमने किताबें भेजी तो पैसे आने चाहिए थे. वो बोला कर रहा हूँ, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, बड़ा बंदा है, कंपनी अच्छी है. So we kept doing the project. We kept sending the books. And after sending the whole project, he stopped kind of slowly answering the calls. And finally, when I started pressing him, मतलब phone पे, email पे, so he sent me a single email saying कि तुम्हारी एक किताब में कहीं पे कोई जैसे कुछ लड़ाई वड़ाई का सीन होगा, वायलेंस करके, तो तलवार से किसी ने मारा जैसे, तो हल्का सा खून दिख गया, तो वो उसके कारण ही सेज कि गवर्नमेंट ने मेरा सारा प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया. अब आई डोंट नो सही है या गलत है, दे वर आल्सो सपोज टू चेक इट, बट आई डोंट थिंक वो इतना बड़ा कोई इशू था, बट ही मेड इट अ बिग. एंड ही सेड कि तुम्हारे तो जो भी मतलब 1 करोड़ रुपए है, मेरे को तो 10 करोड़ का नुकसान हो गया, आई एम गोइंग टू पुट अ केस ऑन यू. So the biggest learning in this for me is of course, जो भी आप काम कर रहे हैं उसका एक तो अप्रूवल्स लेते रहें, सिस्टम्स बनाएं, पेमेंट को कभी ऐसे खुला ना छोड़ो कि बंदे के पास अगर वो हमें 10-10 लाख करके भी देता रहता तो पैसा हमारा इतना नहीं बढ़ता. और थर्ड मिस्टेक इफ एनी? तो थर्ड मिस्टेक्स तो होती हैं. तो थर्ड मिस्टेक ये है कि द लॉट ऑफ पीपल वी हैव वर्कड विद. हमारी जो इंडस्ट्री है, जबकि मैं बहुत सारी इंडस्ट्री में सिखाता हूँ आजकल, हम बोलते हैं कि एलसी पे काम करो या ओपन क्रेडिट में काम करो, तो हमारी इंडस्ट्री में है कि ओपन क्रेडिट ही चलता है और पूरी इंडस्ट्री में चलता है. सो यू नीड टू रियली डू अ ड्यू डिलिजेंस ऑफ द क्लाइंट. तो हमारे एक और क्लाइंट थे जो ग्रीस से थे, बिग क्लाइंट. ऐसे क्लाइंट थे कि वो आके सीधा 50,000 यूरो रख देते टेबल पे. वो बता रहा है कि हम कैश ला नहीं सकते, तो वी हैवंट टेकन इट. बट दैट काइंड ऑफ क्लाइंट, ही स्टार्टेड गेटिंग बिजनेस, और उन्होंने बहुत सारे लोगों से माल ले लिया. एंड देन द कंट्री अगेन got into bankruptcy. Greece went into bankruptcy, and he also declared bankruptcy. So we lost almost I think 50,000 euros at that time. सो आई थिंक यहाँ पे लर्निंग यही है गाइस कि ड्यू डिलिजेंस करो, क्लाइंट से कम्युनिकेट करते रहो, और डू नॉट गेट रियली एक्साइटेड व्हेन यू गेट अ बिग प्रोजेक्ट. मेक श्योर आप you're balanced always. Doesn't matter whether you're losing or you're winning, because that is a sign of I would advise to any exporter कि बिजनेस करो चाहे ना करो, बट जो भी बिजनेस करो उसमें अपनी पेमेंट्स को बिल्कुल पकड़ के रखो. Done. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्सपोर्ट बिजनेस. Chalo, great. What is that one advice which you would like to give to Indian exporters for year 2023? One advice. Okay, I would say go all out, and this is the time for you to grow your business. You need to really focus on the export growth, but the only but is that be ready first. Be completely ready, have complete knowledge of your systems, processes, and how you're going to market, and then only plunge into this. मतलब just for the excitement sake नहीं plunge करना. You need to really be ready for that and then only take a plunge. And my one advice for all the business owners who want to start the export business is, firstly, follow the advice which Sandeep has given, and secondly, आपका जो back end है ना उसको systemize करो, because the way you do anything is the way you do everything. अगर आपकी टीम काम टाइम से नहीं कर रही है, आपके पेमेंट से ले हुए हैं, आप अपने वेंडर्स को पे नहीं कर रहे हो, तो आप अपने क्लाइंट्स को अच्छे तरीके से सर्व भी नहीं कर पाओगे. तो मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ, एक टेक अवे 2023 आ रहा है भाई, अपना बिजनेस को ऑटोमेट कर लो. अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, कितना भी बिजनेस बड़ा बनाना है, बिकॉज अगर आप सिस्टम्स और ऑटोमेशन लगाओगे तभी आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी आ पाएगी. एंड एक चीज़ जो किसी भी क्लाइंट को पसंद नहीं होती है वो होती है सरप्राइजेस. नोबडी वांट्स टू गेट सरप्राइजेस, राइट? सो आपकी कंसिस्टेंसी जब आएगी ना बिजनेस में, तभी स्केलेबिलिटी आ पाएगी. विदाउट कंसिस्टेंसी 10x ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल. And when it got talk about 10x, next guest on my podcast is Gaurav Bhagat. He's going to tell us on how to grow our sales by 10x, because he is the one who has grown his sales to multiple crore rupees per year revenue in his gifting business. And
to know and to learn from his journey, stay tuned and keep watching my videos, keep learning, keep automating. Make sure you subscribe, hit on the subscribe button, like the video, and tell me what was your biggest takeaway from the knowledge, the insights that Sandeep has shared with us when it comes to the export business. And if you want to ask any questions as well from Sandeep, make sure you put it in the comment box. And if we require, we will request Sandeep ji to again come for another podcast, only if you have at least 10 to 12 questions which you want me to ask them from. Till then, wish you all the best and Happy New Year.